Now we have to prove laws of reflection on the basis of wave theory. Suppose this is a reflecting surface. These are the rays incident on this reflecting surface. These rays are coming from an infinite source. As these rays are parallel rays के लिए parallel rays कहाँ से आ सकती हैं? सिर्फ एक infinite source से ही आ सकती है. So these are rays coming from an infinite source. So after reflection, these rays will go like this. ऐसे चली जाएंगी. Now we have to prove laws of reflection. Laws of reflection हमने theoretically we have already studied that angle of incidence is equal to angle of reflection होता है, and incident ray, normal and reflecting ray all lie in the same plane. तो अब ये चीज को हमने प्रूव करना है. प्रूव करने के लिए on the basis of Huygens principle. तो for proving this thing, first of all let us draw wave fronts. तो wave fronts की बात करें, parallel rays are coming. Parallel rays means wave front will be like a sheet, such that rays are coming normally through that wave front. तो normal draw करना है. This will be the wave front. Wave fronts can be infinite. तो अगर हम एक wave front इस point of reflection पे हम draw करें, तो incident wave front जिसको हम बोलेंगे, this will be the incident wave front, primary wave front we can say. Primary wave front. Fine. Rays are normal. Secondary wave front, primary wave front. Now we are naming before reflection. This point is the first point for reflection. Fine. तो before reflection हम प्राइमरी वेव फ्रंट को नाम दे रहे हैं. अगर रिफ्लेक्शन के बाद की बात करें तो दीज आर द रेज विच आर रिफ्लेक्टिंग रेज. तो इनका वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा? ऐसे नॉर्मल टू द रेज. तो अगर हम ये वेव फ्रंट यहाँ पे ड्रॉ करें तो दिस विल बी द सेकेंडरी वेव फ्रंट. Or we can say wave front after reflection. Fine. So now three rays we have taken: first ray, second ray, third ray. Now Huygens principle, what does it say? That any ray traveling from primary wavefront to secondary wavefront should reach in same time. तो अगर हम टाइम की बात करें तो फर्स्ट रे को प्राइमरी वेवफ्रंट से सेकेंडरी वेवफ्रंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, this point is D, E, F, G, H. These are the points. तो फर्स्ट वेव को प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड. सिंपल टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड करके हम टाइम निकालते हैं. तो फर्स्ट रे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस किसका है? कितना है इसका? AG अपॉन AH upon speed of light in air is we represent by c. सेकेंड रे को प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस विल बी BE प्लस EG अपॉन स्पीड कितनी है? c. थर्ड वेव को तो पहुंचने में कितना टाइम लगा? यहां से लेके यहां तक DF बाय C. फाइन. अब इनमें से रिफ्लेक्शन किस में रिप्रेजेंट हो रही है? इस केस में. तो हम इसको उठाते हैं एक बार. तो टाइम वी आर सेइंग फॉर सेकेंड रे BE प्लस EG बाय C है हमारे पास. सेकेंड रे को प्राइमरी वेव फ्रंट से जो बिफोर रिफ्लेक्शन है सेकेंडरी वेव फ्रंट तक पहुंचने में टाइम लग रहा है इतना. फाइन. ना अब यहां पे ड्रॉ करते हैं. वी आर सेइंग
this was the normal for this point, this will be the angle of incidence. फाइन. तो अगर हम इस ट्रायंगल में हैं, in triangle BDE, our aim would be to represent this BE in terms of DE. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, this angle is 90. फाइन. तो ये बनाएंगे this angle. What will be the value of this angle? This angle would be, ये complete 90 है, ये complete 90 है, तो उसमें से ये कॉमन आ गया, तो this angle would be I only, angle of incidence. Fine. तो in triangle this BDE, BE की वैल्यू हमें DE की टर्म्स में चाहिए. BDE. तो if we apply sin of I, it would be equal to, sin I would be equal to BE by DE, perpendicular by hypotenuse. फाइन. तो यहाँ से हमारे पास BE की वैल्यू आ गई DE sin I. ऐसे ही जो हमारे पास EG है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए EH की टर्म्स में. तो अगेन अगर ये वाली ट्रायंगल है, इसमें ये हमारे पास हो जाएगा 90. फाइन. दिस इज द नॉर्मल फॉर दिस पॉइंट. This is angle of reflection. If this is angle of reflection, then this will be angle of reflection. तो इस ट्रायंगल में सेम मेथड से करेंगे तो sin R would be equal to क्या हो जाएगा, EG by EH. तो यहाँ से हमारे पास EG की वैल्यू आ जाएगी EH sin R. फाइन. तो अगर हम टाइम t2 को रिप्रेजेंट करें तो BE की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे DE sin I by C प्लस EG की वैल्यू पुट करें EH sin R by C. दोनों के नीचे क्या है, C. फाइन. अब DE और EH हमारे पास दो टर्म्स आ रही है. EH को वी कैन राइट DH माइनस DE. EH को वी कैन राइट DH माइनस DE. तो पुट करें अगर वैल्यू तो T2 विल बी इक्वल टू DE sin I प्लस EH की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं DH माइनस DE इंटू sin R by C. यहाँ तक है इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, DE DE एक में से कॉमन आ जाएगा इंटू sin I माइनस sin R by C प्लस DH इंटू sin R by C. यहाँ तक है. अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या चीज है, वी हैव टेकन ओनली 3 रेज. अगर हम अब 3 रेज हैं तो नहीं, रेज आर मेनी रेज, ये भी रे है, दिस 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 दिस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज वुड बी देयर. अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आर फॉलिंग बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो अगर हम उनके लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे सेम मेथड से, तो उनके लिए ये ई पॉइंट जो होगा, सपोज इस रे की बात करें तो इसके लिए ई पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, इसके लिए ई पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. फाइन. और इस एक्सप्रेशन में हम क्या दिखा रहे हैं, डी का फैक्टर दिखा रहे हैं. तो इसका मतलब अगर हम इस रे के अलावा जो हमने सेकंड रे लिया है, इसकी पोजीशन चेंज करके किसी भी और रे के लिए हम टाइम फाइंड करेंगे, तो उसमें ये एक्सप्रेशन जो होगा, दिस एक्सप्रेशन वुड बी वेरिएबल. और अगर ये एक्सप्रेशन वेरिएबल होगा, दैट मीन्स टाइम वुड बी डिफरेंट, जो कि नहीं होना चाहिए.
बट हाइगन्स प्रिंसिपल सेज कि एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट तक पहुंचने के लिए सारी रेज को इक्वल टाइम लगना चाहिए, बट दिस फैक्टर इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। तो इसका मतलब इफ हाइगन्स प्रिंसिपल एग्जिस्ट then this expression should approach to 0. ये expression नहीं आना चाहिए. If this expression doesn't exist, that means sin I minus sin R by C into DE is equal to क्या हो जाना चाहिए 0. Means Huygens principle will be verified if this expression we make equal to 0. Or we can say sin I minus sin R is equal to 0, or we can say I is equal to R. This is the law of reflection. Fine.